Hello everyone, welcome to our in this lecture, and this lecture will be based on image formation by image formation by concave mirror. Right? Okay, from class 10th. From class 10th, chapter light. Right? This is a part of 6. Okay, students, in this in previous lecture we will discuss the reflection by spherical mirrors. Right? There are two types of spherical mirrors. First is concave and second is convex. Right? So in this lecture we will discuss the image formation by concave mirrors. Right? So what is the concave mirror? Concave mirror whose refracting surface is towards the center of curvature. Like let's say this is a concave mirror, right? This is a polished surface, and this is the principal axis, and this is a aperture AB. This is pole P, right? This is pole. This is F, focus length, principal focus. And this is center of curvature, right? So what is the concave lens? Concave lens whose concave mirror whose reflecting surface. This is a reflecting surface. Reflecting surface. Okay. And this is polished surface. To whose reflecting surface towards the center of curvature, known as concave mirror. Right? If you missed the previous lecture, so please go and must watch the previous lectures, right? Because its base is the basic fundamental in that videos of related to spherical mirrors, right? So let's start the today's topic, that is image formation by concave mirror, right? So students, before starting this lecture, that is image formation, we will study the rules of image formation, right? So what is the rules of image formation? Yes, rules of image formation, right? After that we will study image formation by concave mirror. First you must understand that is the rules of image formation. इमेज फॉर्म होने के लिए आपको क्या क्या रूल्स की नीड है ओके? तो सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूल्स. ठीक है, आपके पास इस यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ रूल्स है, बट फॉर इमेज फॉर्मेशन वी कैन ड्रॉ टेकिंग बाय एनी 2 रूल्स. राइट, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज पैरेलल रे. ठीक है, पैरेलल रे. Let's say this is a concave mirror. Let's say this is a concave mirror like this. Okay. And this is a pole, and this is focus length, principal focus, and this is center of curvature. Right? It's a principal axis. You know very well. Right? अब नाउ आपकी जो रे है पैरेलल रे आ रही है, जो लाइट रे है आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, the ray comes out parallel to principal axis, and after striking the mirror, the reflected ray will pass through the focus point. Right? ये आपका रूल्स है इमेज फॉर्मेशन के. मीन्स हाउ टू ड्रॉ अ रे डायग्राम. ठीक है, फॉर इमेज फॉर्मेशन. आप रे डायग्राम को कैसे प्रोड्यूस करोगे, उसके लिए हमारे पास 3 रूल्स हैं. फर्स्ट इज पैरेलल रे. जब भी आपके पास मीन्स आपके इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको एक रे पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी. राइट? और जो आपकी रे पैरेलल ड्रॉ होगी वो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर, आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉनकेव मिरर it will reflected through passing the focus, principal focus. Right? So this is a incident ray and this is a reflected ray. Right? But स्टूडेंट्स, आपको जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ाया था उस टाइम पर हमने क्या बोला था, आपका जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, इनका एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे विल बी इक्वल.
राइट, बट यहाँ पे नॉर्मल रे क्या होगी, ठीक है, ठीक है, तो नॉर्मल यहाँ पे क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी आपकी रे पास होगी, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास रे होगी, दैट ये आपकी सीधी रे है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये नॉर्मल रे है, ठीक है। कैसे, देखो आपने जब स्पेरिकल में जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, राइट, तो हमने क्या बोला था, एक आपके पास क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है, ये आपके इसमें पॉलिश सरफेस है, ये आपके पास प्लेन मिरर है, हमने क्या बोला था, इसमें नॉर्मल रे ये होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट, और इंसिडेंट रे ये आई आपकी, ठीक है, व्हेन इंसिडेंट रे स्ट्राइक द सरफेस इट विल रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन will be equal to angle of incidence equal to angle of reflection. This is a normal ray, this is a reflected ray, and this is a incident ray. क्लियर, ये केस थी आपका जब प्लेन मिरर का केस था, बट आपके पास यहाँ पे क्या है, मिरर है, कर्व मिरर है, राइट, एक कर्व मिरर है, ये कर्व मिरर कहां से आया है, आपको जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको वी विल वेरी वेल नो दैट द ये जो आपका स्पेरिकल पार्ट है ये एक स्पेयर से लिया गया है, राइट, दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आपका स्पेयर होता है, स्पेयर में जो आपका रेडियस होता है, रेडियस ऑलवेज टू मेक्स 90 डिग्री एंगल, ठीक है, ये आपका रेडियस है, ये भी 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 रेडियस है, राइट, तो सो रेडियस ऑफ स्पेयर इज ऑलवेज 90 डिग्री, रेडियस of sphere is always 90 डिग्री, ठीक है, टू द सरफेस, सरफेस से क्या है 90 डिग्री पे है ना, ये देखो यहां पर अगर लेते हैं तो ये भी 90 डिग्री है, 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 राइट, तो व्यू वेरी नो कि नॉर्मल रे क्या है आपकी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, तो आपकी यहाँ पे जो भी रेडियस है आपकी परपेंडिकुलर टू द सरफेस है ऑफ स्फीयर, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है, राइट, तो सो यहाँ पे क्या है, हमने यही वाला तो पार्ट लिया हुआ है, ये आपका जो कॉन्केव मिरर है यही तो लिया हुआ है हमने, ठीक है, दिस इज ए कॉन्केव मिरर, दिस इज ए पॉलिश सरफेस एंड दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं इसको बेटर अंडरस्टैंड के लिए, ठीक है, ये आपका क्या है, एक कॉन्केव मिरर है, इतना पार्ट लिया है हमने, ठीक है, दैट लेट्स से ए एंड लेट्स से बी, तो ए एंड बी, ओके, तो सो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है लाइक दिस, ठीक है, और ये जो आपका नॉर्मल रे हमने प्रोड्यूस करवाई है ये करवाई है, ठीक है, यहाँ पे पैरेलल रे आई स्ट्राइक हुई मिरर से आफ्टर रिफ्लेक्टेड पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ये आपका नॉर्मल रे है, राइट, तो सो यहाँ पे जो एंगल बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू एंगल आर, राइट, तो सो आपका फर्स्ट रे क्या है, फर्स्ट रूल क्या है, जब भी पैरेलल रेज पास होती हैं फ्रॉम to striking after striking the mirror they will reflected through the principal focus, right, okay, ये फर्स्ट मिरर, ये आपका फर्स्ट केस था। सेकंड केस की बात कर लेते हैं। सेकंड केस क्या है, रे स्ट्राइकिंग ऑन द पोल, ठीक है, लेट्स से दिस इज अ कॉन्केव मिरर, let's say this is a concave mirror, this is polished surface, this is principal axis, that is P, this is pole, focus length and its center of curvature, right, so now आपकी जो सेकेंड रे जो आज आप प्रोड्यूस होती है, रे स्ट्राइकिंग ऑन द मिरर, ऑन द पोल, सॉरी ऑन द पोल, ओके, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ने इस तरीके से रे आपकी आई और सीधे falls we on the pole of the mirror, right, ray striking on the pole, the light ray striking on the pole of the mirror at an angle theta, ठीक है, ray striking on the pole of the mirror, on the pole of mirror at angle
is reflected back at same angle, at the same angle, रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल। तो अगर ये आपका एंगल आई है तो सेम एंगल पर आपका जो है होगी रे रिफ्लेक्टेड हो जाएगी फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड सेम एंगल ऑफ द अदर साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऑफ अदर साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, यहां पे आपकी ये कोई ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की रे आई पोल पर स्ट्राइक हुई, पोल के स्ट्राइक होने के बाद ये एट सेम एंगल पर जो एंगल यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ था, सेम एंगल पर रिफ्लेक्शन होके इस साइड में आ गई। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज एंगल आई और दिस इज एंगल आर, राइट। तो यहाँ पे नॉर्मल रे क्या है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये भी तो आपका रेडियस ही है, लाइक दिस रेडियस है ना। यहाँ पे आपका नॉर्मल था ये, दिस इज रेडियस परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड दिस इज इन दिस फिगर दिस इज द नॉर्मल रे, ठीक है, दिस इज द ऑल्सो रेडियस, राइट। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां तक क्लियर है ना? ओके, सो नाउ छाप लेना इसको, ठीक है, पॉज करके। नेक्स्ट वी विल मूव थर्ड रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, राइट, दैट इज 3, राइट। रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, right? So let's say it's a concave mirror and this is a principal axis, right? This is polished surface, this is pole focus, principal focus, and this is center of curvature, right? Now the ray through center of curvature, ठीक है, a light ray comes through a object at या ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है आपका, एक ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे पास हो रही है फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द passes of center of curvature, right? So let's say यहां से एक आपकी रिफ्लेक्टेड रे पास हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, राइट, स्ट्रेट है, आप स्केल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा हाथ तो इतना ही सीधा है भाई ओके, तो दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एक राइट रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, राइट। तो इसका ये जो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे रिट्रेसेस ऑन द सेम पाथ, राइट। तो ये आपका ये जो आपका था इंसिडेंट रे स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, रिट्रेसेस हो गई सेम पाथ में। क्यों? बिकॉज आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब देखा था, हमने क्या बोला था आपको, जो आपका ये एंगल है, ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल रे एंड दिस इज अ इंसिडेंट रे एंड दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एंगल किससे बनाती है? नॉर्मल से ही तो बनाती है, राइट। तो यहाँ पे जो एंगल है आपका, जो ये इंसिडेंस है, ये नॉर्मल रे के पैरेलल है, ओके। दिस इंसिडेंस रे पैरेलल टू नॉर्मल रे, तो ये नॉर्मल रे के पैरेलल आ गई। अगर ये इंसिडेंस रे हम यहीं से निकालें, ठीक है, इंसिडेंस रे अगर यहीं से निकालेंगे तो आपका क्या होगा, एंगल क्या होगा बिटवीन इंसिडेंट रे नॉर्मल रे? यस, 0 एंगल, ओके। इफ ही अगर आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये भी बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो नॉर्मल के साथ 0 ही बनाने वाली है, राइट। तो आपकी इंसिडेंस से ये आई विथ एंगल ऑफ 0, ठीक है। तो जब ये आफ्टर स्ट्राइकिंग जब रिट्रेसेस हो जाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी? ऐसी तो जाएगी। जब 0 एंगल बना रही है तो आपको सीधे ही तो जानी है, ठीक है। तो वही यहाँ पर हमने जो आपका रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर आपको पता था, जैसे भी हमने फिगर में शो किया था कि आपकी जो कर्व्ड मिरर होती है, यहाँ पे जो भी इसकी रेडियस है, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी आप रे पास करोगे, ओके, तो नॉन एज नॉर्मल रे, ठीक है, ऑफ इन केस ऑफ कर्व्ड मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल रे आपने ड्रॉ करी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी एक रे आपने पास करवाई, तो आपने देखा कि ये एक नॉर्मल रे थी। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ नॉर्मल रे विल बी 0 था, ठीक है। सो जब आपका आफ्टर स्ट्राइकिंग द
आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ मिरर, ठीक है, द रेज विल बी रिट्रेसेस बिकॉज ऑफ इट्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ नॉर्मल रे विल ऑल्सो बी 0, राइट. सो ये आपका क्या होगा, रिट्रेसेस हो जाएगी, राइट. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, राइट. तो आप इनमें से कोई भी एनी 2 रूल्स यूज कर सकते हैं कोई भी रे डायग्राम को फॉर्म करने के लिए, ठीक है. डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल द प्रीवियस लेक्चर्स. व्हाट इज द इमेज? यस, इमेज व्हेन 2 light rays meet and appears to meet at a point, that will be a point of image, right.